Hello students, how are you? I hope you all are well. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher of Shivraj Singh Children Academy. Okay, in last lecture we discussed about advantage and limitation of Mendeleev's periodic table. Today we are going to start a new topic, modern periodic law. Modern periodic law. Okay, the first question arises, what is Mendeleev's periodic law? Mendeleev's periodic law is the physical and chemical properties of an elements are the periodic function of their atomic mass or weight. It means Mendeleev's periodic table based on atomic weight. Okay, but after the discovery of isobars and radioactive elements. So after the discovery of isotopes, isobars and radioactive elements, Moseley proved that Moseley is a scientist. Yeah, Moseley was a young English physicist. So Moseley proved that atomic number is the fundamental properties. Atomic number is the fundamental properties of an elements. Okay, तो Moseley proved that कब? In 1913. Okay, क्या प्रूव किया? एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, नॉट एटॉमिक weight or masses. Okay, so after the discovery of isotopes, isobar and radioactive elements, Moseley in 1913 proved that atomic number is the fundamental properties of an elements, not atomic weight or masses. Okay, तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वह एलिमेंट्स की क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. ओके, तो एक तो ये बेस हो गया कि आइसोटॉप्स, आइसोबार और रेडियो एक्टिव डिस्कवरी एलिमेंट होने के बाद उन्होंने ये चीज़ बताया. एक चीज़ हम आपको और बताते हैं कि मोज़ले discovered the relationship between X-ray spectra. तो Moseley discovered the relationship between X-rays spectra and atomic number of the elements. Okay, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि Moseley in 1913 discovered a relationship between X-rays spectra and atomic number of the elements. Okay, according to him or according to Moseley, when high energy electron, या कह सकते हैं according to
him when high energy electrons high energy electron were focused on target. When high energy electron were focused on target made of elements under study X-rays were generated. तो according to Moseley, when high energy electrons were focused on target made of elements under study, X-rays were generated. इसका मतलब कि जब हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फोकस करते हैं किस पर, ऑन टारगेट मेड ऑफ द एलिमेंट्स, तो क्या होता है, एक्स रेज जनरेट होता है. कौन सा रेज, एक्स रेज जनरेट होता है. ओके, इसका मतलब कर सकते हैं कि he studied the frequency of X-rays. He studied the frequency of X-rays emitted from elements. Yeah, he studied the frequency of X-rays emitted from elements and observed that यहाँ पे लिख दे रहे हैं and observed that, और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, and observed that frequency of X-rays was proportional to the atomic number, not atomic masses or weight. तो फर्स्ट मैंने क्या बताया कि मोज़ले in 1913 discovered a relationship between X-ray spectra and atomic number of the elements. उन्होंने बताया क्या कि when high energy electrons were focused on target made of elements under study, X-rays were generated. He studied the frequency of X-rays. उन्होंने क्या किया, स्टडी किया किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज, जो कहाँ से इमिट होता है, फ्रॉम एलिमेंट्स. इसके बाद उन्होंने क्या किया, एंड ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज, और एक्स-रेज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज मतलब एक्स-रेज इमिटेड फ्रॉम एलिमेंट्स. frequency of X-rays of elements was proportional to the atomic number not atomic masses. ओके, कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू द किसके होता है, एटॉमिक नंबर के होता है, न कि एटॉमिक मास के होता है ना. एंड प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन, और उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया किसके किसके बिटवीन, एंड अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो
तो उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया कुछ ऐसा था, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी और ये हमारा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे सपोज दैट 10, 20, 30, 40, 50, ओके। और ये हमारा क्या है, इन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ओके। और जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या पाया, ही वॉज ऑब्टेन्ड अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्टेन्ड अ स्ट्रेट लाइन, किसके किसके बिटवीन, एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन। उन्होंने एक दूसरा ग्राफ प्लॉट किया, किसके बिटवीन, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास, है ना। तो जैसे 12, 16, 20, 24 एंड 28, जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसके बिटवीन, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास के बिटवीन, तब उन्होंने क्या पाया कि वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ना मिल करके हमको एक जिग-जैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऑब्टेन हो रही है। और जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बिटवीन, एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन, कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हो रहा है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हमको किसके बिटवीन दिखाई पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर की। वही चीज़ उन्होंने बताया कि एंड ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वाज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस। अगर प्रोपोर्शनल होता किसके, एटॉमिक मास के, तो हमको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलता, ठीक है। और जबकि ये जो फ्रीक्वेंसी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वह एटॉमिक नंबर की है, इसलिए क्या हमको मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड हो रहा है। इट मीन्स यू कैन से, आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट नॉट एटॉमिक मासेस, ओके, क्लियर। चलिए, तो मोज़ले प्रूव दैट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट नॉट एटॉमिक मासेस, ओके। इसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड मोज़ले। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड मोज़ले एंड प्रपोज्ड अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ and proposed a modern periodic law. तो according to Moseley, what is modern periodic law? Modern periodic law मतलब इन्होंने कुछ विशेष चीज़ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या बताया कि एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जबकि मेंडलीव्स ने क्या बताया था कि एटॉमिक मास इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। मोज़ले ने सिर्फ उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया। उन्होंने क्या मॉडिफाइड किया कि एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट नॉट एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था उसी को मॉडिफाइड कर दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके। तो व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? अकॉर्डिंग टू मोज़ले, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an elements are the periodic function of their atomic number, okay. So what is the modern periodic law? The physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number, okay. कब दिया था इन्होंने? 1913 में,
है ना। तो दिस इज द न्यू पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच इज गिवन बाय Moseley in 1913. The physical and chemical properties of an elements are the periodic function of their atomic number. Okay, so in this periodic table, in this periodic table, elements arranged in increasing order of their atomic number. Okay, तो in this periodic table elements arranged in increasing order of their atomic number. Okay, if elements are arranged, तो इस पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो कहेंगे क्या कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic number, similarities in physical and chemical properties appear at regular intervals. इसका मतलब क्या हुआ कि if elements are arranged in increasing order of their atomic number, similarities in physical and chemical properties appear at regular intervals. इसका मतलब कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो एक निश्चित समय के पश्चात समान प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स की क्या होती है, रिपीटेशन होता है या उसकी पुनरावृत्ति होती है ना। इसका मतलब कह सकते हैं क्या कि द रिपीटेशन of properties at regular intervals is called periodicity. The repetition of properties at regular intervals is called periodicity, है ना। अगर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स की अगर बार बार क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा थोड़ा सा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम टेबल पहले बना देंगे तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए हम पहले प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो हेडिंग हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक
characteristics features of modern periodic टेबल, है ना। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे बना हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर, है ना। कहें क्या कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल divided into horizontal rows and vertical columns, तो Mendeleev's periodic table divided into या modern periodic table, sorry not Mendeleev, modern periodic table divided into horizontal rows and vertical column. Okay, horizontal rows is called period, and vertical columns is called groups. Okay, तो horizontal rows is known as periods, okay, and vertical columns is known as groups, है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? horizontal rows, या कह सकते हैं कि there are 7 horizontal rows. There are 7 horizontal rows. It means कि 7 horizontal rows present in modern periodic table. There are 7 horizontal rows. कितने horizontal rows थे? 7 horizontal rows, है ना। which is denoted by 1 to 7, जो 1 से लेकर के 7 तक क्या होता है? डिनोट किया जाता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कहें क्या कि द 7 horizontal rows consist of 10, या कह सकते हैं the 7 periods consist of 10 horizontal rows called series. मतलब 7 periods consist of 10 horizontal rows called series, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। मतलब हाउ मेनी सीरीज प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 10 सीरीज। कितने सीरीज हैं टोटल? 10 सीरीज हैं। और पीरियड्स कितने हैं टोटल? 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 7th periods have one horizontal rows,
1 हॉरिजेंटल रोज ईच, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सेवंथ पीरियड्स हैव 1 हॉरिजेंटल रोज ईच, while 4, 5 and 6 periods have 2 horizontal rows. 2 horizontal rows each. 2 horizontal rows each, है ना। कहेंगे द 4th, 5th, 6th periods have 2 horizontal rows each. The 2 horizontal rows of each 4th, 5th, 6th periods is called even and odd series. Even and odd series. Okay, so the 2 horizontal rows of each 4th, 5th, 6th periods is called even and odd series, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 7, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 7 पीरियड्स में केवल एक हॉरिजेंटल रोज है, जबकि 4th, 5th और 6th पीरियड्स में 2 हॉरिजेंटल रोज है। एक को हम इवन कहेंगे और दूसरे को हम ऑड सीरीज कहेंगे, इवन एंड ऑड सीरीज कहेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? फर्स्ट पीरियड। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पीरियड is called very short period. Why? Because there are only 2 elements. Only 2 elements. How many elements? 2 elements, है ना। सेकेंड एंड थर्ड periods is called short period. Why? Because there are 8 elements. How many elements? 8 elements. Okay, तो second and third periods is called short period. Why? Because there is 8 element. और first period is called very short period. Why? Because there are only 2 elements, है ना। इसके बाद क्या हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स या पीरियड is called long period. Why? Because there are 18 elements. Okay, 6th and 7th periods are called very long period. Why? Because there are 32 elements. है ना। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं
सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 है, और सिक्स्थ और सेवन्थ में टोटल 32 एंड 32 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है आपके, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। ओके, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 58 to 71, एटॉमिक नंबर 58 to 71 एलिमेंट्स आर separately placed below main periodic table। मेन पीरियोडिक टेबल मतलब एटॉमिक नंबर 58 to 71 एलिमेंट्स आर सेपरेटली प्लेस्ड बिलो मेन पीरियोडिक टेबल। These elements are named as rare earth metals। These elements are named as rare earth metals। Okay, next properties, atomic number 90 to 103 elements has been placed separately below main periodic table, है ना। और these elements are called actinides, और 58 to 71 elements is known as lanthanides, है ना। तो 58 to 71 lanthanides and 90 to 103 is actinides, है ना। तो 90 to 103 elements are same in properties, okay, and 50 to 71 elements are same in properties but placed below the main periodic table. This is the limitation of modern periodic table, okay। Next properties, the elements come after uranium is called post uranic or trans uranic एलिमेंट्स, है ना। तो द एलिमेंट्स कम आफ्टर यूरेनियम का सिंबल क्या है, यू, एटॉमिक नंबर 92, है ना।
तो द एलिमेंट्स कम आफ्टर यूरेनियम, ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं, यूरेनियम के बाद मतलब 93, 94, 95, 96, 97, 98, etc, है ना, एंड सो ऑन। तो द एलिमेंट्स कम आफ्टर यूरेनियम, जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं मतलब आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर, ओके, इज कॉल्ड पोस्ट यूरेनिक। पोस्ट मतलब बाद में, किसके, यूरेनिक मतलब यूरेनियम, या ट्रांस मतलब बाद में, किसके बाद, यूरेनियम के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक और पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स। और दीज एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। जो 92 के बाद के एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स और आर्टिफिशियल एलिमेंट भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट एलिमेंट्स मेड बाय ह्यूमन, ओके। ऐसे एलिमेंट जो हैं या आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सभी जो है सिंथेटिक एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये एलिमेंट जो हैं वह मैन मेड हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट इज, या फर्स्ट पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट इज NP। NP मीन्स नेपच्यूनियम, उसको हम क्या बोलते हैं, नेपच्यूनियम। तो नेक्स्ट, एक्सेप्ट एट्थ एंड जीरो ग्रुप, एक्सेप्ट एट्थ एंड जीरो ग्रुप, एक्सेप्ट एट्थ एंड जीरो ग्रुप ईच, एक्सेप्ट एट्थ एंड जीरो ग्रुप ईच ग्रुप्स divided into two subgroup A and B। मतलब जीरो ग्रुप मतलब इनर्ट एलिमेंट्स या नोबल गैसेस को छोड़कर, लगे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। तो दीज एलिमेंट प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप, ओके, एंड एट्थ ग्रुप। और जो एट्थ ग्रुप है और जीरो ग्रुप को छोड़ करके बाकी फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप लाइक एज ए सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एलिमेंट्स of group shows similarities in, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप shows similarities in their properties, तो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शोज सिमिलरिटीज इन दियर प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, सिमिलरिटीज़ मतलब समानता प्रदर्शित करते हुए आपस में प्रॉपर्टीज़ में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होंगे, सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वह प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होंगे। तो वही कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शोज सिमिलरिटीज़ इन दियर प्रॉपर्टीज़, ओके। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम बनाएंगे कैसे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे कैसे, है ना। देखिए ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जब तक इसको हम नहीं समझेंगे तब तक हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को नहीं समझ सकते, है ना। इसलिए इसे बनाना ज़रूरी है ना। तो कैसे इसको बनाएंगे हम, ऐसे कुछ बनाएंगे।
ठीक है। चलिए, ये क्या हमारा MPT मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, और ये है हमारा ग्रुप्स है ना, और ये है सीरियल नंबर, और इसमें क्या है पीरियड्स है ना, या इसमें कर देते हैं ये हो जाएगा हमारा सीरीज, और इसमें हो गया पीरियड्स है ना। इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, और ये हो गया हमारा 0 ग्रुप। तो कितने ग्रुप्स है इसमें, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। ओके, फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप A and B, ओके, A and B है ना, एक्सेप्ट 8th and 0 है ना। अब पीरियड नंबर फर्स्ट, इसमें कितने सीरीज हैं, ओनली 1 सीरीज, ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड। इसके बाद फिर सेकेंड पीरियड, सेकेंड में भी कितने हैं, ओनली 1 सीरीज मतलब 2। फिर हमारा कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड, ओके, थर्ड में नंबर ऑफ सीरीज 1, ओके। इसके बाद हमारा कौन सा है, फोर्थ पीरियड, फोर्थ में 2 हैं, कौन कौन सा, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर हमारा है फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ में 2 सीरीज हैं, कौन कौन सा, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ओके। और उसके बाद फिर हमारा सिक्स्थ पीरियड है, उसमें है हमारा 6th, 7th, फिर 8th एंड 9th, और उसके बाद है हमारा 7th पीरियड, जिसमें केवल एक सीरीज है, कौन सा, 10th है ना, 10th सीरीज, ओके। ओनली 10th सीरीज है ना। तो हम पीरियड को कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में कैसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम। तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा हाइड्रोजन, हम कैसे एलिमेंट को रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, या कह सकते हैं कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ओके। तो पहले हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, उसके बाद सभी क्या है, वैकेंट, ओके। फिर 0 ग्रुप में कौन है हमारा, हीलियम। तो टोटल एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 एलिमेंट्स। तो दिस इज द वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड में कौन सा है हमारा, लिथियम आता है, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे फ्लोरीन, वैकेंट, और फिर यहाँ पे क्या है हमारा, नियॉन, ओके। फिर सोडियम, क्योंकि एक ही सीरीज है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर यहाँ पर ऑर्गन है ना। फिर कौन है हमारा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और 3 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन 8th ग्रुप, कौन कौन सा, आयरन, कोबाल्ट, निकल है ना, और यहाँ पे वैकेंट, ठीक है।
और फिर इसी में देखिए इसमें दो सीरीज़ है, 4th एंड 5th। तो इसी में कौन है हमारा कापर, कौन सा है फिर कापर है, और फिर इसी में गैलियम है, फिर इसी में जर्मेनियम है, सॉरी कॉपर फॉर फिर जिंक, फिर गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, और फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक मतलब AS, आर्सेनिक, और सेलेनियम Br, और ये वैकेंट है, और यहाँ पे क्रिप्टॉन, और यहाँ पे कौन सा है रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, इट्रियम, जिरकोनियम, और यहाँ पे नियोबियम, मॉलिब्डेनम, और यहाँ पे टेक्टिनियम, और यहाँ पे होगा रुथेनियम, Ru, रोहोडियम एंड PD, पैलेडियम, है ना। और उसके बाद फिर इसके नीचे होगा, यहाँ पे है फिर सिल्वर, और फिर CD, कैडमियम, और इंडियम, फिर एशियन मतलब टीन, SB, एंटीमनी, नहीं सॉरी एशियन टीन, SB, एंटीमनी, और यहाँ पर टेलोरियम, और फिर यहाँ पे इंडियम, उसके बाद ये वैकेंट, और यहाँ पे जेनान। ओके, तो फिर 6 में यहाँ पे हो जाएगा सीजियम, यहाँ पे है बेरियम, यहाँ पे लैंथेनम, और यहाँ पे HF, हाफनियम, और TA, टेंटेलियम, और W, टंगस्टन, और यहाँ पे रेहनियम, और फिर यहाँ पे होगा ऑस्मियम, इरेडियम, और प्लेटिनम, और ये वैकेंट। इसमें अभी एक सीरीज़ और है, ये हो गया 8th और फिर 9th। इसमें एक कौन सा है AU मतलब गोल्ड, मरकरी मतलब Hg, मरकरी, और Ti, थैलियम, Pb, लेड, Bi, बिस्मथ, पोलोनियम, और एस्टेंटाइन, और ये हमारा वैकेंट है, और यहाँ पर रेडान। ओके, और फिर लास्ट 7th में फ्रेंसियम, Ra, रेडियम, Ac, एक्टीनियम, Rf, रदरफोर्डियम, Db, डबनियम, और उसके बाद ये सब वैकेंट है ना। अब इसी के नीचे कौन से एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड्स हैं, और फिर कौन से हैं एक्टिनाइड्स हैं। लैंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक हैं 58 to 71 तक, 58 to 71 तक है ना। मतलब कहाँ से कहाँ तक, सीरियम टू ल्यूटिडियम तक, ठीक है। और एक्टिनाइड्स जो हैं वह हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं, एटॉमिक नंबर 90 to 103 तक है ना। मतलब कहाँ से कहाँ तक, थोरियम टू Lw या Lr, लोरेंसियम तक है, ठीक है। तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखिए एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, 1st to 7th ग्रुप डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप A एंड B। अब इसे A में कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। B में कौन कौन से है, कापर है, सिल्वर है और गोल्ड है ना। वैसे AB बट एक्सेप्ट 8th and 0 है ना। पीरियड्स, टोटल पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड नंबर ऑफ सीरीज टोटल 10। 1st, 2nd, 3rd and 7th period contains only one series and 4th, 5th
and sixth period contain two series, that is one even and other is odd series, है ना. In this periodic table, elements arranged in increasing order of their atomic masses. If elements are arranged in increasing order, जैसे अब देखिए इसको, जैसे एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, फिर 10, ऐसे हम अरेंज करेंगे. इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, है ना. तो सिमिलरिटीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल. सिमिलरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स. कौन सा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट की क्या होगी? रिपीटेशन होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी. अब इसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम सेम, प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम सेम, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान एंड एल्युमिनियम सेम, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन आर सेम. तो आफ्टर द डेफिनेट इंटरवल सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल बी रिपीटेड. क्या करेंगे? वो रिपीट करेंगे. ओके, चलिए, तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है. अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना. तो तब तक आप लोग एंजॉय करिए केमिस्ट्री के साथ, है ना. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.